السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں، اسلامی بھائیوں اور بہنوں، سامعین و سامعات کرام، فیس بک پر سننے والے ساتھیوں، آج 10 ستمبر 2022 عیسوی مطابق 13 صفر 1444 ہجری اور تقریباً یہ آشاڑھ ساون آسن کا مہینہ چل رہا ہے۔ 4 ہفتوں سے میں فیس بک سے دور رہا، اور ویسے ریڈیو بھی ہم نے بند کر دیا ہے، اس لیے کہ کوئی ساتھی لوگ سن نہیں رہے ہیں، اور 4 ہفتوں سے مشغولیت ہو جاتی سنیچر کو۔ تو انشاءاللہ تبارک و تعالی کوشش رہے گی کہ ہر سنیچر کو کم سے کم آدھا گھنٹہ بھی ہم آپ لوگوں کے روبرو ہوں، اور آپ کے جو سوالات ہوں تو ان کے ہم جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ تو آج ایک حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، صحیح ترغیب و ترہیب کی، جس کو شیخ البانی رحمہ اللہ نے صحیح یا حسن قرار دیا ہے۔ بڑی خوبصورت اور بڑی عمدہ حدیث ہے۔ اس کی تشریح آپ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی سعادت حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور اگر کسی بھائی کا کچھ سوال آئے گا بیچ میں تو انشاءاللہ اس کا بھی جواب دینے کی کوشش کروں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اغتنم خمسا قبل خمس، شبابک قبل حرمک، وصحتک قبل سقمک، وغناک قبل فقرک، وفراغک قبل شغلک، وحیاتک قبل موتک۔ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو، 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانو۔ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو اپنے بڑھاپے سے پہلے، وہ صحتک قبل سقمک، اور اپنی صحت تندرستی کو بیماری سے پہلے، وہ غناک قبل موتک قبل فقرک، اور اپنی مالداری کو فقیری آنے سے پہلے، وہ فراغک قبل شغلک، اور اپنے خالی وقت کو مشغول ہونے سے پہلے، وہ حیاتک قبل موتک، اور اپنی زندگی کو موت سے پہلے۔ تو دیکھیے، یہ 5 چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں نصیحت کی ہے، اور اسے غنیمت کہا ہے کہ اسے غنیمت جانو۔ اور یہ چونکہ جو اوقات ہیں، 5 اوقات، یہ 5 اوقات طاقت، قوت اور عمل کرنے کے، کام کرنے کے اوقات ہیں۔ ان اوقات میں ہم کام کر سکتے ہیں، ان اوقات میں ہم اچھے انداز سے کام کر سکتے ہیں، اچھے انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کر سکتے ہیں۔ اب آئیے تھوڑا میں ہر پوائنٹ کو لے کر کے میں آپ کے سامنے شرح پیش کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ استجیبوا لربکم من قبل ان یأتی یوم لا مرد له من اللہ ما لکم من ملجأ یومئذ وما لکم من نکیر، کہ اپنے رب کی دعوت کو قبول کرو قبل اس کے کہ ایسا وقت آئے جس کو لوٹانے والا کوئی نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں لوٹا سکتا ہے، اور نہ اللہ کے علاوہ کہیں تمہارے لیے پناہ گاہ ملے گی اس دن، اور نہ کوئی اس کو مٹانے والا، روکنے والا، اور نہ کوئی اس کو نکیر کرنے والا ہے۔ تو اس آیت سے بھی پتہ چل رہا ہے کہ قیامت کے وقت آنے سے پہلے یا موت آنے سے پہلے اپنے آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت کو قبول کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی دعوت کو پر لبیک کہو۔ تو آئیے میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شبابک قبل حرمک، اپنی جوانی کو بڑھاپا آنے سے پہلے غنیمت جانو۔ تو اس کا مقصد یہ ہے، اس کا ہدف یہ ہے
कि जो हमारी जवानी अल्लाह तबारक व तआला ने दी है, इंसान को जो जवानी अल्लाह तबारक व तआला अता करता है, ये ताकत और क़ुव्वत का वक्त होता है। बुढ़ापा आने से पहले बुढ़ापे में आजिज़ी परेशानी हो जाती है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये बतलाया कि अपनी जवानी को गनीमत जानो, ज़्यादा से ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करो, और उन्हीं दिनों में तुम हज करो, और भी जो चीज़ें हैं इबादत की बकसरत जो है अल्लाह ताला की इबादत हासिल करो, ताकि बुढ़ापे में जो कमी कमज़ोरी हो उसकी तलाफ़ी हो जाए, उसका मामला हो जाए। और जवानी की जो इबादत होती है वो अल्लाह तबारक व तआला को बहुत ज़्यादा पसंद है। जवानी की इबादत अल्लाह तबारक व तआला को ज़्यादा पसंद है। तो इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, हमें चाहिए कि अपनी जवानी को गनीमत जाने। आज बहुत सारे भाई हैं, बहुत सारे लोग हैं अभी के ज़माने में कि वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अपनी जवानी को बर्बाद कर रहे हैं, अपनी जवानी को बर्बाद कर रहे हैं। कोई कान छेद करके, कोई सुअर का दांत लटका करके, कोई बाल को छील करके, कोई फटी हुई पैंट पहन करके, और बहुत सारे अभी मुसलमान नौजवान हैं जो अपनी जवानी को फेंसिडिल और टैबलेट और क्या क्या खा खा करके अपनी जवानी को बर्बाद कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमें जानना चाहिए, समझना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने हमें जवानी दी है। इस जवानी में हम अल्लाह तबारक व तआला की दीन की खिदमत करें, अल्लाह तबारक व तआला की क़ुर्बत हासिल करें, और अल्लाह तबारक व तआला की क़ुर्बत हासिल करके हम अपनी आखिरत को संवारें। तो ये जो जवानी का जो वक्त है ये बहुत ही कीमती वक्त है, और अल्लाह तबारक व तआला के नज़दीक जवानी वाली इबादत बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद है। तो मेरे भाइयों दोस्तों, तो हम गनीमत जानें। और इसीलिए सहाबा कराम की ज़िंदगी में हम देख रहे हैं कि सहाबा कराम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा करते थे कि अल्लाह के नबी, मैं हर रोज़ रोज़ा रखना चाहता हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि नहीं, एक हफ्ते में 2 दिन रखो, सोमवार और जुमरात को, तो या नहीं तो महीने में 3 दिन रखो। तो कहा उससे भी हम ज़्यादा ताकत रखते हैं। तो कहा ठीक है, 1 दिन रोज़ा रखो और 1 दिन इफ्तार करो, सौम दाऊद जो है उस तरह से करो। तो जवानी के आलम में इस तरह से एक सहाबी ने आकर के कहा कि मैं हर रोज़ कुरान पढ़ने की सलाहियत रखता हूँ, ताकत रखता हूँ। तो अल्लाह के नबी ने फरमाया कि महीना में 1 दिन ख़त्म करो। कहा उससे भी ज़्यादा ताकत, तो कहा 15 दिन पर, लास्ट में 3 दिन पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुकर्रर किया। तो वो लोग अपने जवानी के अय्याम को गनीमत जान करके अल्लाह तबारक व तआला की इताअत में लगाया और अल्लाह तबारक व तआला की क़ुर्बत हासिल किया। लेकिन आजकल के जो नौजवान हैं वो अपनी ज़िंदगी दुनिया भी बर्बाद कर रहे हैं और आखिरत भी बर्बाद करते हैं। ये सब आज 95% जो नौजवान हैं वो राह रास्त से भटके हुए हैं। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें हिदायत अता फरमाए। हमसे जुड़े हैं मदीना मनव्वरा सऊदी अरब से मोहम्मद ज़हीरुद्दीन साहब, लिखते हैं अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं शेख? वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह का करम है, 4-5 हफ्तों के बाद हम फेसबुक पर आपसे रूबरू हुए हैं आप लोगों से। दुआ करें कि अल्लाह तबारक व तआला इस सिलसिले को कायम रखे। लेकिन अफसोस यह है कि रेडियो हमने बंद कर दिया और कोई सुनने ही वाला नहीं था। गाना सुनने से, इधर उधर सुनने से, बकवास सुनने से लोगों को फुर्सत नहीं, तो आधा घंटा भी कोई सुनने वाला नहीं। और बंद हुए आज तकरीबन 1 महीना हो गया, 1 महीना से ज़्यादा, लेकिन आज तक किसी ने फ़ोन नहीं किया कि क्यों बंद कर दिए, क्या हुआ, नहीं हुआ, कुछ नहीं। तो पैसे की परेशानी नहीं थी, लेकिन सामईन की परेशानी थी, लोग सुन नहीं रहे थे। इसलिए हमने कहा कि फालतू में पैसा ज़ाय करने की क्या ज़रूरत है। अला कुल्ल हाल, दूसरा पॉइंट जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सेहत का कब्ल मर्ज़ का, यानी अपनी तंदुरुस्ती को बीमारी आने से पहले गनीमत जानो। अपनी तंदुरुस्ती को बीमारी आने से पहले गनीमत जानो। हम देखते हैं आज मस्जिदों में कि कुर्सियों पर बैठकर लोग नमाज पढ़ते हैं, सजदा पेशानी अल्लाह के लिए ज़मीन पर टेकने के लिए परेशान है, मुहताज हैं, और रग़बत रखते हुए और ख्वाहिश रखते हुए भी अपनी पेशानी ज़मीन पर नहीं रख पाते हैं, रुकू सही से नहीं कर पाते हैं, नमाज बैठ कर के पढ़ते हैं या कुर्सी पर बैठ कर के पढ़ते हैं।
तो ऐसे लोगों को चाहिए, बल्कि सारे लोगों को चाहिए कि इससे इबरत हासिल करें और अपनी तंदुरुस्ती को बीमारी आने से पहले गनीमत जाने। ये अलग बात है कि हदीसों में आया है कि जो लोग सेहत के हालत में जो इबादतें करते थे तो बीमारी आने के बाद उन इबादतों, उन नफली इबादतों का सवाब अल्लाह तबारक तआला जारी रखता है। तो अगर करेंगे सेहत की हालत में तब ना, सेहत की हालत को गनीमत जानेंगे तब ना आपके लिए मर्ज़ की हालत को अल्लाह तबारक तआला गनीमत बनाएगा, और मर्ज़ की हालत में भी अल्लाह तबारक तआला आपको ज़्यादा से ज़्यादा खैर और सवाब अता फरमाएगा। इसलिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे, तअर्रफ अलल्लाह फिर रखा यअरिफुका फिश शिद्दा, कि तुम अल्लाह तबारक तआला को खुशहाली में, मालदारी में अल्लाह ताला की कुर्बत हासिल करो, अल्लाह ताला को पहचानो, तो अल्लाह तबारक व ताला तुम्हें मुसीबत के वक्त पहचानेगा। लेकिन आज देखते हैं कि खुशहाली है, दौलत है, तो नमाज रोज़े से दूर, हर चीज़ से दूर रहते हैं, और जो ही परेशानी लायक होती है, बीमारी लायक हुई, तो उठते बैठते खाते पीते सोते जागते सब अल्लाह तबारक व ताला को पुकारते हैं और अल्लाह तबारक व ताला की कुर्बत हासिल करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। सेहत व तंदुरुस्ती की हालत में और हर नाहिए से हम अल्लाह तबारक व ताला को याद रखें, और अपनी सेहत के वक्त में ख़ास करके हम ज़्यादा से ज़्यादा नेकी हासिल करें। और हम नेकी हासिल करने के बहुत सारे मौक़े और बहुत कम वक्त में भी हम नेकी हासिल कर सकते हैं। जैसा कि हम एक सिलसिला चला रहे थे, 16-17 किस्त हमने लिखा था कि अमल थोड़ा और अजर बहुत ज़्यादा, जो फेसबुक पर और व्हाट्सएप पर ग्रुपों में है ये, तो अमल थोड़ा लेकिन अजर बहुत ज़्यादा, सवाब बहुत ज़्यादा है। हम एक बार भी ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु लहुल मुल्कु व लहुल हम्दु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर पढ़ लिए, एक बार दरूद पढ़े तो कितना सवाब मिलेगा, और कुरान की अगर चंद आयत पढ़े तो कितना सवाब मिलेगा। तो इन चीज़ों को अगर हम चाहें तो सेटिंग करके हम अल्लाह तबारक व तआला की कुर्बत हासिल कर सकते हैं। फिर जुड़े हैं अभी अब्दुस्सलाम सलफ़ी साहब, इसी तरीके से अलाउद्दीन सलफ़ी साहब भी जुड़े हैं। हम आप लोगों से गुजारिश करते हैं कि अगर आप लोग कुछ सवालात करना चाहते हैं तो लिख करके भेजें, इंशाअल्लाह तबारक व तआला जवाब दिया जाएगा, वरना इस हदीस की शरह बयान करने के बाद मैं आपसे रुखसत हो जाऊंगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो खुलासा कलाम ये हुआ कि हमें अपनी तंदुरुस्ती को, अपनी सेहत को गनीमत जान करके हमें अल्लाह तबारक व तआला की इताअत, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत में हमें आगे रहना चाहिए, दीन की खिदमत में आगे रहना चाहिए, दीन की तबलीग में आगे रहना चाहिए, और कुरान और हदीस की हिफाजत करने में, कुरान हिफ्ज़ करने में, नमाज, फ़र्ज़ नमाज ख़ास कर और नफली नमाज़ों की जो है पाबंदी में हम आगे रहें। आगे अल्लाह तबारक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो पॉइंट फरमाया है वो ये कि ग़िना का क़ब्ल फ़क़्रिक, कि अपनी मालदारी को फ़कीरी आने से पहले गनीमत जानो। हमसे जुड़े हैं फेसबुक पर नूरुद्दीन अंसारी साहब। तो अपनी मालदारी को फ़कीरी आने से पहले गनीमत जानो, फ़कीरी आने से पहले, यानी फ़क़्र फ़ाक़ा आने से पहले हम अल्लाह तबारक व तआला के रास्ते में सदक़ात व खैरात पेश करके, सदक़ात व खैरात दान दे करके हम अल्लाह तबारक तआला की कुर्बत हासिल कर सकते हैं। और ऐसा न हो कि हम मालदारी में नहीं दे सके और मुसीबत आई, मुसीबत आने के बाद सारी मालदारी जाती रही और फ़क़्र फ़ाक़ा के वक्त में हाथ मलने के अलावा कुछ नहीं हो सकता है। और सदका एक ऐसी इबादत है जो हमेशा काम आएगी, और मरने के बाद भी अगर अल्लाह तबारक व तआला मौका देगा किसी को और कहेगा कि भाई तुम जा कर के दुनिया में क्या करोगे, तो वो यही कहेगा कि हम चाहते हैं कि हम जा कर के सदका व खैरात करें और आपकी कुर्बत हासिल करें। वहाँ ये नहीं कहेगा कि हम नमाज पढ़ें, रोज़ा रखें, बल्कि कहेगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सदका व खैरात करें, इसलिए कि सदका व खैरात के जो अजर व सवाब वो आदमी देख चुका है, उसको वो भूला नहीं जाएगा। तो मेरे भाइयों दोस्तों, मालदारी को हम गनीमत जाने, मालदारी को हम गनीमत जाने। आज देखिए बहुत सारे लोग जो लाखपति थे, करोड़पति थे, अभी खाकपति हैं, करोड़पति के आलम में दारू शराब में न शबाब व कबाब में मस्त, हर चीज़ में मस्त रहा करते थे, और अभी वो एक एक दाने का मोहताज है। तो
क्यों न हम अपनी मालदारी को हम दीन की खिदमत में पेश करें। ऐसा नहीं कहा जा रहा है कि पूरी दौलत आप अल्लाह के राह में खर्च कर दीजिए, आप चंद कुरान मजीद भी खर्च कर दे सकते हैं मस्जिद में या मदरसे में। बुखारी शरीफ की शरह है, बुखारी शरीफ है, दरसियाती किताबें हैं, कोई भी चीज़ है। एक कोई गरीब है उसके यहाँ 10,000 में कोई नल गला दीजिए, कोई गरीब है उसको कुछ दे दीजिए। जो आम सदक़ात हैं, ज़कात तो है ही, जो आम सदक़ात हैं 10 रुपया 20 रुपया, उससे आप अपनी अल्लाह की कुर्बत हासिल करें और अपनी उम्र में भी इजाफा कराएं। तो ये जो है आप अपनी मालदारी से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। अगर आज जो भाई 10 चाय पीते हैं, अगर वो 3 ही चाय पिएं और बाकी चाय का पैसा एक डब्बा में रखें और महीना में किसी मदरसा में दे दें, किसी यतीम खाना में दे दें या किसी मौलवी को जो है तनख्वाह में दे दें, तो कितनी बड़ी बात होगी। लेकिन लोग शेखी बघाड़ते हैं कि हम अभी 10 चाय पीते हैं, हम 20 चाय पीते हैं, गुटखा खाते हैं, ये करते हैं। लेकिन उस शख्स के पास अगर आप मस्जिद मदरसा के चंदा के लिए जाइए, ताउन के लिए जाइए, तो 10 रुपया भी निकालना नहीं निकाल सकता है। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, अपनी मालदारी को गनीमत समझिए और अल्लाह के राह में जो ही मिले उसको खर्च कीजिए, जो ही मुयस्सर हो उसको खर्च करें, खर्च करने से दरेग ना करें। अब्दुस्सलाम सलफ़ी साहब लिखते हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, आमीन, और मज़ीद इल्म के नशर व इशाअत करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी आपने दुआ की। अल्लाह तबारक व तआला हम सभी को इस नेक कार खैर की जो है तौफ़ीक़ अता फरमाए और इस चीज़ को हम सारे लोगों के लिए सदका जारिया बनाए, आमीन या रब्बिल आलमीन। शेख अपने वालिदैन के नाम से या मैयत के तरफ से उम्रा बदल करवाने नेकी की ख्वाहिश से, वाज़ेह तो नहीं लग रहा, लेकिन मैं जो समझा सवाल ये कि अपने वालिदैन के नाम से या मैयत की तरफ से उम्रा बदल करवाएं। अगर आपके वालिदैन ज़िंदा हैं, अगर आपके वालिदैन ज़िंदा हैं और सेहत और तंदुरुस्ती है, लेकिन उनके पास इतना माल दौलत नहीं है कि वो वहाँ तक पहुँच सकें, तो उनकी तरफ से उम्रा या हज बदल करना दुरुस्त नहीं है, इसलिए कि वो सही सालिम है लेकिन उन पर अभी फ़र्ज़ नहीं हुआ है। लेकिन अगर वो माजूर हैं और जाने की सलाहियत भी है, लेकिन वो माजूर हैं, ऐसे बूढ़े हैं कि चल नहीं पाएंगे या ऐसे बीमार हैं कि वो उठ नहीं पाएंगे, तो ऐसी सूरत में ऐसे लोगों की तरफ से उम्रा बदल या हज बदल कर सकते हैं। लेकिन हज बदल या उम्रा बदल करने वाले के लिए लाजिम है कि वो अपनी नफ्स का पहले उम्रा या हज किया हो, अपने नफ्स की तरफ से, यानी अपने ऊपर जो फ़र्ज़ है उम्रा या हज वो पहले किया हो, तब हज बदल कर सकता है। लेकिन मैयत की जानिब से आप कभी भी उम्रा बदल या हज बदल कर सकते हैं, इसलिए कि मैयत का मामला ख़त्म हो गया है। आप उनकी तरफ से करेंगे तो उन पर आप एहसान करेंगे, तो आप उनकी तरफ से किसी भी वक्त उम्रा कर सकते हैं और हज बदल कर सकते हैं, बशर्ते कि आप अपने नफ्स का हज बदल या उम्रा, अपने नफ्स का हज फरीज़ा या उम्रा फरीज़ा अदा कर लिए हों, तब जाकर के आप हज बदल कर सकते हैं। अल्लाह आलम सवाब। अच्छा, तो ये पॉइंट हो गया। अब और पॉइंट है, चौथा पॉइंट जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो ये है कि फराग का कब्ल शुग़ल, अपने कुशादा औक़ात को, अपने वक्त, खाली वक्त को मशगूल होने से पहले गनीमत जानो, खाली वक्त को मशगूल होने से पहले जानो। देखिए, बहुत सारे लोग हैं जो खाली वक्त में रहते हैं और चौक चौराहा पर बैठकर, होटलों में बैठ कर फास्टिंग करते हैं, रात भर जागते हैं 11-11 बजे तक और अपना वक्त ज़ाय करते हैं। क्या बेहतर होता कि आप उन औक़ात को गनीमत जान करके कुरान की तिलावत करें, कहीं बैठ करके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पढ़ें, कहीं बैठ करके तस्बीह तहलील करें, 100 बार सुभान अल्लाह बिहम्दिही पढ़ें, दरूद शरीफ 10 बार पढ़ें, वगैरह वगैरह जो ज़िक्र अज़कार हैं जिसमें न गुस्ल की ज़रूरत है न वज़ू की ज़रूरत है, तो हम कहीं भी बैठ करके, हम मोटरसाइकिल पे भी चल रहे हैं तो हम अज़कार पढ़ सकते हैं,
मोटरसाइकिल में भी चल रहे हैं, हम अज़कार पर पढ़ सकते हैं, समझ गए, गाड़ी में बैठे हुए हैं अज़कार पढ़ सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हम अगर वक्त को गनीमत जानेंगे, मशगूल होने से पहले, देखिए शादी होने से पहले आदमी के पास फराग रहता है, खाली वक्त रहता है, शादी हुई थोड़ी मशगूलियत बढ़ी, शादी के बाद बच्चे हुए उससे ज़्यादा मशगूलियत हुई, अब कमाने खटाने का मामला आया, बाल बच्चों को पालने का मामला आया, फिर उससे भी आगे बढ़ेंगे तो बाल बच्चों की शादी विवाह करने का मामला आया, यानी मशगूलियत ही मशगूलियत। फिर बुढ़ापा आ जाएगा और बुढ़ापा में इंसान कुछ नहीं कर पाता है। इसलिए अपने खाली औकात को गनीमत जाने। सुनने में आया कि कोरोना के ज़माने में बहुत सारे लोगों ने कुरान हिफ्ज़ कर लिया, बहुत सारे लोगों ने कई हदीसों को याद किया, बहुत सारे लोगों ने कुछ किया। तो ये नेक काम के लिए वक्त मुकर्रर नहीं है, किसी भी वक्त हम काम कर सकते हैं। इसलिए बाज़ उलमा किराम कहते हैं कि अहम्मु निअमिल्लाह अज़्ज़ व जल्ल अलल अब्द सलासुन, कि अल्लाह की नेमतों में से सबसे अहम नेमत 3 हैं। वो क्या है? ईमान, सेहत और खाली वक्त। ईमान, सेहत और खाली वक्त। अभी हम लोग जो हैं तरसते हैं कि कोई खाली वक्त हो तो हम 10 आदमी के पास बैठें या उस रिश्तेदार के पास जाएं, वहाँ जा कर के उससे मुलाकात करें, लेकिन नहीं हो पाता है, मशगूलियत बढ़ जाती है, कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, कुछ हो नहीं पा रहा है। तो इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, अपने खाली औकात को गनीमत जाने, और ख़ास करके हम उन उलमाए किराम को, उन तुल्लाब इल्म को कहना चाह रहे हैं कि जिनको अभी मशगूलियत नहीं बढ़ी है, आप वक्त को गनीमत जानें, छोटी छोटी हदीसें याद करें, मसला मसाइल याद करें। आपके ताक में आवाम हैं कि कोई आए हमको मसाइल बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा शेख इब्न बाज़, शेख इब्न उसैमीन के जो फतावा हैं वो पढ़ें, उनके फतावा सुनें, नेट पर सुनें, और भी दीगर जो वसाइल है उनसे सुनें। आप फतावा सुनेंगे तो गोया कि आलिम उलमा का फतावा से ये होता है कि आपके पास एक दरिया, एक समुंदर आपको कूजे में वो लोग बंद कर देते हैं, और कोई भी मसला आता है दलाइल के साथ पेश करते हैं, आपको वो ढूंढने में ज़माना लग सकता है, वक्त लग सकता है, लेकिन आपको वो उलमाए किराम सब ढूंढ करके लाते हैं। इसलिए हम तुल्लाब इल्म से कहना चाह रहे हैं कि आप बड़े बड़े उलमाए किराम के जो फतावे हैं उन फतावों को गनीमत जाने। शेख इब्न तैमिया रहमहुल्लाह, शेख इब्नुल क़य्यिम रहमहुल्लाह, इन लोगों की किताब, शेख अलबानी रहमहुल्लाह की तहक़ीक़ात, इनसे आप इस्तिफ़ादा करें और वक्त को गनीमत जाने, तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप नाबग़े रोज़गार बन सकते हैं, आप बड़े आलिम बन सकते हैं। छोटे आलिम, छोटे डॉक्टर, छोटे किसान, इन लोगों का भी कोई वैल्यू नहीं है, ये इन लोगों का सब झोला छाप कहते हैं। इसलिए इल्म हासिल करें, फिर आप चाहेंगे भी फरागत के बाद कि हम और कुछ कर लें, कुरान के सूरा याद कर लें, या अहादीस याद कर लें, या फतावा या और भी किताबों का मुताला कर लें, तो ये आपके लिए दुश्वार हो जाएगा। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, आप वक्त को गनीमत जाने मशगूल होने से पहले। आखिरी बात जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस हदीस में हमें नसीहत की है वो ये है कि हयात का कब्ल मौतिका, अपनी ज़िंदगी को अपनी मौत से पहले गनीमत जानो। अपनी ज़िंदगी को अपनी मौत से पहले गनीमत जानो कि जो अल्लाह ने ज़िंदगी हमें अता की है वो दोबारा फिर अता नहीं हो सकती है। इसलिए हम आखिरत के लिए ज़ख़ीरा बना लें ज़िंदगी में, और ज़ख़ीरा बना करके हमको चाहिए कि कसरत से हम अल्लाह तबारक तआला की अताअत करें, दीन की खिदमत करें, किताबें पढ़ने में लगें, दूसरों तक पहुँचाने में लगें, और जो भी बात हम दूसरों को कहें उनको हम तहक़ीक़ करके दलाइल की रोशनी में हम करें, अटकल पच्चू से हम काम न लें। तो मेरे भाइयों दोस्तों, ये ज़िंदगी जो हमको अल्लाह ताला ने अता किया है, ये नेमत है अल्लाह तबारक तआला की, बहुत बड़ी अमानत है, बहुत बड़ी नेमत है। चाहे वो बच्चे की हालत में हो, जवानी की हालत में हो, बुढ़ापे की हालत में हो, बीमारी की हालत में हो, तंदुरुस्ती की हालत में हो, और फ़क्र फाक़ा की हालत में हो, या मालदारी की हालत में हो, तो इन सारी चीज़ों में अल्लाह तबारक व तआला की जो ये ज़िंदगी है जो हमें अता की है उसको हम गनीमत जानें, इसी में हमारे लिए भलाई है। तो मेरे भाइयों दोस्तों, ये 5 चीज़ों से पहले हम गनीमत जानें, ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें नसीहत फरमाई है, और इसमें वक्त का ज़्यादा ख्याल रखा है। मोमिन अपना हर काम रूटीन के हिसाब से, जदवल के हिसाब से करता है, अलल टॉप या अशवाई तौर पर इधर उधर नहीं करता है, बल्कि सारा काम सीधे साधे से करता है। हमारे लिए रमज़ान आता है,
हमें ये बतलाने के लिए कि एक मोमिन की ज़िंदगी टाइम टेबल वाली ज़िंदगी है। हमें हज आता है तो हमें ये बतलाता है कि हज में फ़लाँ तारीख को फ़लाँ काम, फ़लाँ तारीख को फ़लाँ काम, सूरज उगने से पहले, सूरज डूबने से पहले। ये हमें बतला रहा है कि मोमिन की एक ज़िंदगी ये टाइम टेबल जदवल वाली रूटीन वाली ज़िंदगी है। यूं ही खाते पीते मरते जीते वाले ज़िंदगी हमारी नहीं है, ये गैरों की ज़िंदगी है। हमारे लिए हर वक्त कीमती है, हर लम्हा कीमती है। और हमारे सलफ़ सालिहीन रहमहुमुल्लाह अपने उस लम्हा, अपने उस वक्त पर अफसोस करते थे जिस वक्त में, जिस लम्हा में वो अल्लाह को याद नहीं करते थे या कोई किताब का मुताला नहीं करते। अल्लामा इब्न रुश्द रहमहुल्लाह, जिनकी किताब बिदायतुल मुज्तहिद है, उनके बारे में आया हुआ है कि वो ज़िंदगी में कभी भी मुताला को नहीं छोड़े, लेकिन 2 रात, वो लिखते हैं कि 2 रात के अलावा मैंने कभी भी किताब का मुताला से दूर नहीं रहा, हमेशा किताबों के मुताला मशगूल रहा, लिखने पढ़ने में मशगूल रहा। लेकिन 2 रात मैं दूर रहा इससे। एक रात वो जिस रात में हमारे वालिद साहब का इंतकाल हुआ, और एक रात जिस रात हमारी शादी हुई थी। तो इन 2 रातों के अलावा हमने कभी भी ज़िंदगी में किसी रात को हमने ज़ाय नहीं किया, और हमने उसमें इल्म हासिल किया और उलमा किराम की किताबों का मुताला किया। इसी तरीके से हज़रत इब्न उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा करते थे कि इज़ा अमसैता फ़ला तंतज़िर अस्सबाह व इज़ा अस्बहता फ़ला तंतज़िर अल-मसा, कि जब तुम शाम करो तो सुबह का इंतज़ार नहीं करो, और जब तुम सुबह करो तो शाम का इंतज़ार नहीं करो। यानी मतलब ये कि जितने इत्मीनान और सुकून के साथ तुम सुबह करो तो अल्लाह की इबादत करो, तो ये नहीं कि हम शाम में करेंगे या रात में करेंगे या ये करेंगे वो करेंगे। यहाँ एक पॉइंट की बात ये है लोगों के लिए कि जो लोगों की नमाज कज़ा हो जाती है, मसलन असर की नमाज कज़ा हो गई मसलन, और वो बाहर से आया और अभी सूरज डूबने में आधा घंटा 1 घंटा बाकी है, तो दिल में ये आता है कि हम मगरिब के टाइम में अदा कर लेंगे। ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल गलत है, अच्छी बात नहीं है। बल्कि हमें चाहिए कि जिस वक्त हम आएँ उसी वक्त हम फ़ौरन हम नमाज अदा कर लें, इसलिए कि सूरज डूब गया तो आपकी असर की नमाज क़ज़ा हो गई, और सूरज उगने से पहले पहले, सूरज बाकी रहने से पहले पहले आपकी वो असर की नमाज बर्बाद नहीं होती है, वो अदा ही के हुक्म में होती है, गरचे आपकी जमात फौत हो गई हो। इसलिए आप कहीं से भी आएँ तो आप वक्त को गनीमत जाने, मौत कब लायक होगी पता नहीं, और आप जो जमात छुट्टी है उसको आप पूरी करें। मेरे भाइयों दोस्तों, अब्दुल सलाम सलफ़ी साहब लिखते हैं माशाअल्लाह बहुत ही उम्दा प्रोग्राम है, और मोहम्मद असलम आलियावी माशाअल्लाह बहुत खूब, अकमल शाकिर एक बुजुर्ग आलिम दीन है मदनी साहब, बारकल्लाहु फ़ीक लिखते हैं बारकल्लाहु फ़ीकुम फ़ी इल्मिकुम व नफ़अकुमुल इस्लाम वल मुस्लिमीन व युज़ादु फ़ी मीज़ान हसनातिकुम यौमल क़ियामah, अल्हम्दुलिल्लाह आमीन, बारकल्लाहु फ़ीकुम। इस तरह की दुआएं और इस तरह की बातें और इस तरह की जो है शुभ कामनाएं अगर आती रही तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला ज़िंदगी में बरकत होगी, इल्म में बरकत होगी। अब अगर सवाल है किसी भाई के पास तो पूछे, नहीं तो शरह ख़त्म हो गई है मेरे अंदाज से। वैसे तो इस हदीस पर अगर शरह लिखे और उलमा कराम ने जो लिखा है तो वो बहुत बेहतरीन, बहुत मुफस्सल है, लेकिन काम की बात यह है कि हम वक्त को गनीमत जाने, वक्त को हम सही अंदाज से हम उसको काम में लाएं। इसी में हमारी, आपकी और सारे लोगों की भलाई है। और आज माशाअल्लाह बहुत सारे भाई जुड़े हैं, इंशाअल्लाह आइंदा भी शनिचर को हम आएंगे इंशाअल्लाह ताला। और अगर आप लोग चाहेंगे तो दूसरे दिन भी हम आ सकते हैं फेसबुक पर। रेडियो तो हमने बंद कर दिया, लेकिन फेसबुक पर हो सकता है। और इस प्रोग्राम को, इस चीज़ को हम सदाए हक़ जो हमारा यूट्यूब चैनल है उस पर हम अपलोड करेंगे इंशाअल्लाह। शकील भाई जो हमारे कतर में रहते हैं वो अपलोड करते हैं, वो अपलोड करके शाम तक इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये सदाए हक़ पर ये प्रोग्राम आ जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला, लास्ट में लिखते हैं मोहम्मद असलम आलियावी, कोर्ट मैरिज शादी करना कैसा है शेख? अब कोर्ट मैरिज शादी से ही लफ्ज़ से पता चल रहा है कि इसका क्या हुक्म होना चाहिए। शादी का जो शरीयत ने जो हमें तस्वुर दिया है वो ये है कि लड़का लड़की को देखे और लड़की लड़का को देखे
दोनों का दिल मिलने के बाद, दोनों के तरफ से सारा मामला होने के बाद फिर 10 आदमी 4 आदमी से निकाह करे, निकाह करके उस लड़की को अपने घर ले आए और शोर हंगामा करे, यानी ऐलान करे कि फलां की बेटी की शादी फलां के यहाँ होने वाली है। तो इस तरह से है ये कोर्ट मैरिज। तो ये भगौड़ा भाग करके भागने वाले और अपने माँ बाप की इज्जत को नीलाम करने वाले लोग कोर्ट मैरिज करते हैं। तो ऐसा करना ये शरीयत की निगाह में दुरुस्त नहीं है। ये शरीयत, समाज और सारे लोगों के लिए ये नाक कटाने वाली बात है। और ये और अभी जो अफसोस की बात यह है कि बहुत सारे गैर मुस्लिम लड़कों के साथ मुसलमान की लड़कियां भागती हैं और वो कोर्ट मैरिज करती हैं और रहती हैं, धड़ल्ले से रह रही हैं, और कुछ सालों के बाद, कुछ महीनों के बाद उनको लात मार के फेंक देता है। बहुत सारे मुसलमान हैं जो गैर मुस्लिम की लड़कियों के साथ कोर्ट मैरिज करके ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। तो ये कोई ज़िंदगी नहीं है, ये कोई ज़िंदगी नहीं है, भगौड़े की ज़िंदगी और ये इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ बगावत की ज़िंदगी है। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, ऐसे करने से हमें परहेज़ करना चाहिए। देखिए शेख अल्लामा इब्नुल क़य्यिम रहमतुल्लाह ने अद्दा व दवा या अद्दवा अल काफ़ी, उनकी बड़ी उम्दा किताब है। मैं तालिब इल्मों को नसीहत कर रहा हूँ कि उस किताब को मुताला करें कि अद्दवा वद्दा या इस तरह से है, या अल जवाबुल काफ़ी लिमन सअला अनिल शिफा अल काफ़ी, दोनों एक ही नाम है, एक ही किताब का। बड़ी उम्दा किताब उन्होंने लिखी इस मौजू पर, और उन्होंने जो बयान किया है कि ये लड़का लड़की का जो मामला, नज़रबाजी का जो मामला, और ये जो है मोहब्बत और प्यार का जो मामला होता है, चंद घंटे और चंद घड़ियों की बात है, बाद में पछतावा। अक्सर जो है कोर्ट मैरिज वाली शादी वो टिकती नहीं है, बरकरार नहीं रहती है। इसलिए मेरे भाइयों दोस्तों, ऐसे में इस तरह से हमें नहीं करना चाहिए। अल्लाह इससे हमें महफूज रखे। लिखते हैं मोहम्मद असलम साहब इस पर कि लेकिन शेख इसमें वली राज़ी नहीं होता तो उसका क्या हुक्म। हम तो पहले बयान कर दें कि ये इस्लाम और मुसलमानों के साथ खुली बगावत है। तो ये तो सवाल फिर आता है नहीं कि वली राज़ी नहीं होता, वो तो खुलेआम है। और अगर कहा जाए कि लड़की का वली राज़ी नहीं है तो खुलेआम जनाकारी है, वो खुलेआम जनाकारी है। इसलिए कोर्ट मैरिज और इन चीज़ों से हम मुसलमानों को दूर रहना चाहिए। और जो हमारे इस्लाम ने जो शादी का तस्वूर दिया है, शादी के जो स्टेप बयान किया है, उस अंदाज से हम शादी करें तो इंशाअल्लाह तबारक ताला हमारे लिए कामयाबी। हमसे भी पहले बड़े बड़े नौजवान गुजरे हैं, जिन नौजवानों की ज़िंदगी हमारे लिए मिसाली ज़िंदगी थी। क्या वो लोग नौजवान नहीं थे? क्या उन लोगों को ख्वाहिश नफ्स नहीं थी? क्या उन लोगों के पास ये नहीं था कि हम ऐसा करें ऐसा करें? लेकिन उनके दिल में अल्लाह का डर था, समाज की और इस्लाम की मोहब्बत थी, इस्लाम को बदनाम नहीं करना चाहते थे। आज देखिए, कल ही की बात है कि गैर मुस्लिम औरत लड़की बुर्का पहन करके और गैर मुस्लिम के साथ भाग रही थी, लेकिन बाद में पता चला कि वो मुस्लिम है। तो आज मुसलमानों को बदनाम करने के हज़ारों तरीक़े जो है अपनाए जाते हैं। तो हमें इन सारी साजिशों को नाकाम करना है और अल्लाह तबारक ताला से हमें हमेशा मदद तलब करनी है, और ताकि हमें अल्लाह ताला की मदद से हम अपने इस्लाम को बोलबाला करें। अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हमें और आप सबको दीन इस्लाम पर कायम रखें, सारी मुसीबतों से महफूज रखें, और जब तक दुनिया में रखें कुरान और हदीस के मुताबिक ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। और जब ख़ात्मा हो तो ज़ुबान से ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह निकले। व आखिरु दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन व सल्लल्लाहु तआला अला नबी वसल्लम। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।